Hello students. Today we are going to take up a topic called find missing numbers. Now what are we supposed to do in these kind of questions? Basically you are given common patterns and some numbers are there, and we have to find common relationship between these numbers. So whatever relationship we establish between these numbers, same has to be for this, same has to be for this, and likewise we'll have to find the value of k. Okay, so this is all about scanning the numbers and finding a common relationship. Now, these kind of questions generally appear in IMO Olympiad, IPM, MAT, and many other competitive exams. These are very, very interesting questions, and this is, in fact, a kind of a game. It's not even some kind of studies. It is more like a game. Okay, and during the course of this explanation, just follow this cursor, which is iMinds cursor. And my name is Nitin Chauhan. I am math tutor and mentor at iMinds Academy, and our objective is to make math interesting. So join me now, and I would suggest that you take a book and a pen, and you also solve along with me. That will be great fun. So let's start. So today we are going to have about 6 7 questions. So the first one is like this. So there are three numbers like 2 4 20, 3 9 90, and then you have 1 7 and k. Now, this first question itself is quite a I would say a challenging one for someone who are new to this concept. So, what is the relationship here? Now, what I would suggest is you pause this video for a while and try to solve by yourself. And once you are done, then you can restart the video and you can continue watching the video. So you can go ahead pausing the video, and then you can come back whenever you are comfortable. Okay, now so the relationship between these numbers is you take up this number 2. Now just 2 to the power of 4. What does 2 to the power of 4 means? It means you are multiplying 2 4 times, so that gives you 16, and then you add this 4, so that gives you this 20. So this is the relationship between 2 4 and 20. 2 to the power of 4 plus 4 gives us 20. Likewise, same relationship has to be established in this figure also. So again we say 3 to the power of 4 plus 9 is equal to how much? 3 to the power of 4 is 81. That is 3, you multiply 4 times, 3 into 3 into 3 into 3, and then you add 9 to it, so you are getting 90. So this pattern is kind of coinciding with the earlier pattern. So this is the pattern for this particular question. Now same will apply here. 1 to the power of 4, which is equal to 1 into 1 into 1 into 1, that gives us 1 only, and then you add this 7, right? So you get answer as 8. So therefore the value of k is here 8. So let us replace this. Okay, let me just write down like this. Okay, this is the value of this k is equal to 8. K equals to 8. So this is the first question wherein we had this power kind of a thing, and we had to add the number beside it, so that gave us the lower number. So now let's go to the second question. Second question में क्या है? Yeah, second question में ये है कि आपका ये 5 8 9 40 14 ये नंबर्स इस तरह से दिए गए हैं, और हमें इस k की वैल्यू को फाइंड करना है. तो इसमें क्या पैटर्न है? देखिए, बड़ा सिंपल पैटर्न है ये. इसको और इसको मल्टीप्लाई कीजिए, गुना कीजिए. 5 इंटू 8 हमको 40 देता है, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो 14 आता है. सो इसका पैटर्न हो गया 5 इंटू 8 हमको 40 देता है, और 5 प्लस 9 हमको 14 देता है. सो देयरफॉर ये पैटर्न हो गया. अभी यहाँ भी सेम होगा. 4 इंटू 9 हमको 36 मिल गया, ये नंबर टैली हो गया. और 4 प्लस 7 इक्वल्स टू 11, ये नंबर भी टैली हो गया. अब इसी तरह से हम यहाँ भी लगा देते हैं. 7 इंटू 6 हमको 42 मिल गया, और 7 प्लस 8 ये हमको 15 मिल गया. तो ये k वैल्यू जो है इधर 15 है. सो k इक्वल्स टू 15. ठीक है ना? क्लियर? अभी हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. अगला क्वेश्चन क्या है?
ये क्वेश्चन, हाँ ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। इस तरह से नंबर देखने से हमें लगता है कि ये शायद सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ये बड़ा ही आसान है। सो इसमें क्या करना है, हमें ये पैटर्न ऐसे दिया गया है कि ये जितने भी नंबर्स है ना, ये अपने अपने क्या नाम है, ये इसमें जो दिए गए सर्कल में, इन सबको ऐड करो और उसको डिवाइड बाय 2 करेंगे तो ये बॉक्स वाला नंबर मिलता है हमको। तो देखते हैं क्या होता है। 42 प्लस 38 प्लस 20 प्लस 78, ये हमको देता है, ये सब ऐड करेंगे तो आपको आ जाएगा 178, और इसको 2 से हम डिवाइड करेंगे तो हमें आ जाता है 89। तो ये जो 89 है, ये इधर ये नंबर यहाँ टैली हो रहा है, राइट। अभी नेक्स्ट पैटर्न क्या है, 38 प्लस 92 प्लस 72 प्लस 12, तो ये हमको देता है 214। ये सब ऐड करने के बाद आपको 214 आएगा। अब 214 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें आ जाता है 107। तो ये जो 107 है, ये इधर बॉक्स में ये यहाँ है। अब आ जाते हैं इसके ऊपर। अब ये सेम पैटर्न, सेम लॉजिक यहाँ भी लगाएंगे। 34 प्लस 58 प्लस 88 प्लस 76, तो ये हमको देता है, कितना आता है, ये ऐड करने से आएगा आपको 256, 256, और इसको हम डिवाइड बाय 2 करेंगे तो हमारा आंसर जो है, के का वैल्यू जो है वो 128 हो जाएगा। तो ये हमारा फाइनल आंसर है, के इक्वल्स टू 128। ठीक है, तो ये हमारा अभी कौन सा क्वेश्चन हो गया, ये तीसरा क्वेश्चन हो गया। सो के इक्वल्स टू 128। अभी हम जाते हैं चौथे क्वेश्चन पे। हाँ जी, ये चौथा क्वेश्चन क्या है, ये बड़ा ही सिंपल है। आपको इन दोनों को इन तीनों को ही मल्टीप्लाई करना है एक्चुअली। 2 इंटू 5 इंटू 19। सो ये बड़ा सिंपल पैटर्न है। 2 इंटू 5 इंटू 19, तीनों नंबर अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको बीच वाला नंबर ये मिल जाता है। ये जो है ये वाला नंबर है, ठीक है। अभी 2 इंटू 4 इंटू 22, तो ये 8 इंटू 22 विच इज इक्वल टू 176। सो ये 176 जाके इधर हमको इसका ये वैल्यू इधर बैठ गया। उसी तरह से 5 इंटू 4 इंटू 28, 5 इंटू 4 इंटू 28 कितना होता है, 20 इंटू 28, वो हो जाता है 560। तो ये जो के वैल्यू है, ये 560 हमको मिल गया। सो इसका आंसर जो है वो के इक्वल्स टू 560। ठीक है, ये हो गया आपका फोर्थ क्वेश्चन का आंसर। अब आ जाते हैं फिफ्थ पे। फिफ्थ क्वेश्चन ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, थोड़ा डिफिकल्ट भी बोलूंगा मैं इसको। तो ये थोड़ा पैटर्न अलग दिया गया है। अब इसमें क्या करना है आपको, इसमें देखो 4 3 6 2 ऐसे दिए गए हैं और बीच में नंबर्स है ना। तो पहले क्या करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। 4 इंटू 3 इक्वल्स टू 12। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 6 इंटू 2 इक्वल्स टू 12। अब इन दोनों को ऐड कर दो, 12 प्लस 12 आपको 24 आ गया। ये 24 जो है, ये 42 का रिवर्स है। मतलब दिस इज नथिंग बट 42 का रिवर्स है ना। रिवर्स में अगर लिखेंगे तो 24 हो जाता है ना। तो ये रिवर्स वाला पैटर्न दिया गया है इसमें। सो पहले तो मैं रिपीट कर रहा हूँ, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो और उन दोनों को ऐड कर दो। ऐड करने के बाद जो नंबर आएगा उसको रिवर्स करोगे तो ये नंबर यहाँ आपको बीच में मिलेगा। अब देखते हैं इसमें यही सेम पैटर्न है या दूसरा है। 9 इंटू 5 आपको आ गया 45। 7 इंटू 11 आ गया 77। अब इन दोनों को ऐड कर दो तो ये हो जाएगा 12 1 122। ठीक है ना। अब 122 को हम रिवर्स करेंगे, रिवर्स लिखेंगे तो क्या होगा, 221। तो ये रिवर्स वाला नंबर जो है, ये आपके पास इधर बीच में खड़ा है। अब उसी तरह से हम इसी लॉजिक को यहाँ लगाएंगे। अब हमें के का वैल्यू फाइंड करना है, राइट। तो के को 8 से मल्टीप्लाई करो पहले, हमको पता नहीं के का वैल्यू।
उसको ऐड करो 9 इंटू 6 से, वो हमको क्या देना चाहिए, इसका रिवर्स देना चाहिए। इसका रिवर्स क्या है, 201 का रिवर्स होता है 102। तो ये हमको इक्वेशन मिल गया। अब इस इक्वेशन से हम k का वैल्यू फाइंड करेंगे। सो 8k प्लस 9 इंटू 6 54 इक्वल्स टू 102। अब 8k हो गया 102 माइनस 54 विच इज इक्वल टू 48। तो k का वैल्यू जो है 48 अपॉन 8 विच इज इक्वल टू 6। सो इसका आंसर हमको मिल जाता है k इक्वल्स टू 6। चलो एक बार क्विकली हम इसको रिव्यू कर लेते हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, और इन दोनों को ऐड करने के बाद 8k इंटू 8 और 9 इंटू 6 को ऐड करने के बाद क्या देना चाहिए, इस नंबर का रिवर्स होना चाहिए। सो 201 का रिवर्स जो है वो 102 होता है। उस वजह से ये 8k प्लस 54 इक्वल्स टू 102 आ गया। और उस तरह से हम इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो k का वैल्यू हमको 6 मिल गया। तो इसका आंसर हो गया 6। ये k का वैल्यू भी 6 है। ठीक है, अभी हम चले जाते हैं छठे क्वेश्चन पे। छठा क्वेश्चन अगेन बड़ा इजी सा है, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। इसमें इन तीनों को मल्टीप्लाई करो, सॉरी मल्टीप्लाई नहीं, 7 प्लस 5, हाँ, इन तीनों को ऐड करो और इसको डिवाइड बाय 3 करोगे तो आपको बीच का नंबर मिलेगा। सो 7 प्लस 6 प्लस 5 इक्वल्स टू 7 प्लस 6 प्लस 5 कितना हो गया, 13 प्लस 5 18 डिवाइडेड बाय 3। सो ये हमको 6 मिल गया। ये बीच वाला नंबर हमको ये तीनों ऐड करके डिवाइड बाय 3 करना है बस। सो 9 प्लस 12 प्लस 6 इक्वल्स टू 27, और इसको डिवाइड बाय 3 करेंगे तो हमको 9 मिल जाता है। तो ये 9 हमारे पास यहाँ बीच में खड़ा है। ठीक है ना। उसी तरह से 8 प्लस 6 प्लस 7 ये हो जाता है 21, और 21 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमको आ जाता है 7। तो इसका आंसर जो है k इक्वल्स टू 7 मिल गया हमको। ये k इक्वल्स टू 7 है। ये बड़ा इजी वाला एक पैटर्न था, है ना। सो नाउ विल कम टू आवर लास्ट क्वेश्चन। ये लास्ट क्वेश्चन भी थोड़ा सा थोड़ा टाइम लगता है इस तरह के क्वेश्चंस में, क्योंकि नंबर्स को एस्टैब्लिश करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। अभी इस क्वेश्चन को देखते हैं ना तो जनरली फर्स्ट इंप्रेशन क्या आता है, 8 प्लस 4 12, 12 इंटू 13 156 होता है। 5 प्लस 6 11, 11 स्क्वायर 121 हो रहा है। तो अपना दिमाग उस डायरेक्शन में दौड़ता है कि शायद कुछ स्क्वायर को लेकर है, या 12 इंटू 13, या कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स को मल्टीप्लाई करो तो कुछ हो रहा है। एक और चीज़ जो यहाँ दिखने में आती है वो 19 है, 23 और 27 है। इसका डिफरेंस 4 है और इसका भी डिफरेंस 4 है। ये भी ट्राई करने का एक इंटेंट बनता है, एक आइडिया आता है कि चलो इसको हम ट्राई करते हैं, बट एक्चुअली इसमें ऐसा कुछ है नहीं। इसमें जो पैटर्न दिया गया है वो आपका पैटर्न जो है, ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करो और इसको ऐड करो, उससे ये आपको ये बीच वाला नंबर मिलता है। सो 19, एक सेकेंड ना, 19 मल्टीप्लाइड बाय 8 प्लस 4। अब बोर्ड मास के रूल के हिसाब से आपको पहले मल्टीप्लिकेशन करना है फिर एडिशन करना है। तो ये हम जब करते हैं तो 152 प्लस 4 जैसे हमको 156 मिल गया। तो ये नंबर और ये नंबर टैली हो गए, राइट। उसी तरह से 23 इंटू 5, 23 इंटू 5 कितना होगा, 115, है ना। अब 115 को 6 में ऐड कर दो तो आपको आ गया 121। तो ये नंबर यहाँ फिक्स, ये दोनों टैली हो गए और ये नंबर भी यहाँ टैली हो गए थे। ठीक है ना। अब उसी तरह से हम इसको भी ले लेंगे। 27 इंटू 11 वो आता है 297। ठीक है, 297 में 3 ऐड कर दो तो आपको वैल्यू मिल गया 300। तो k का वैल्यू जो है इसमें आपको आ गया 300। सो ये हमारा अभी ये सातों क्वेश्चन हमने अच्छी तरह से सॉल्व कर लिए। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पैटर्न्स अच्छे लगे होंगे और इसके सॉल्यूशंस भी आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगे होंगे। इस तरह से आप इसको प्रैक्टिस करते जाइएगा तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग भी होता है और अपना एक
नंबर्स को डील करने का एक अच्छा प्रैक्टिस भी हो जाता है. So that is all for today, and I will come back with one more interesting concept. एक नया टॉपिक के साथ आऊँगा. तब तक के लिए stay safe, stay happy, and I'll see you soon. अच्छा, before I sign off, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो हमारे इस चैनल को, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह के इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस जब भी आए तो आपको आप मिस ना करो. और आपके बच्चों को दिखाइए, आपके फ्रेंड्स को दिखाइए, अगर आपके रिलेटिव्स हैं उनको भी आप शेयर कीजिए इस चैनल के बारे में. काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हम डालते रहेंगे. और हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें भी आप जुड़ सकते हो. उसमें काफ़ी एक्टिविटीज़ हम करते रहते हैं. So I think today I will end here, and I'll see you soon with my next video. Take care. Bye bye.